Dear students, in last class we studied about definition of electromagnetic induction. We studied that electromagnetic induction is the phenomenon of induction of electric current in a coil due to change in flux crossing through it. अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट अमाउंट ऑफ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स व्हाट अमाउंट ऑफ electric current will be produced, what amount of EMF will be induced, and if EMF will be induced due to change in flux, then what will be direction, जो करंट इंड्यूस होगा उस किस डायरेक्शन में होगा. To know that, now we are going to study Faraday's law of electromagnetic induction. अब हम लोग उसी लॉ जानने के लिए कि जो है कितना चेंज इन फ्लक्स के चलते, कितना चेंज इन फ्लक्स के चलते कितना जो है इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट में, कॉइल में, और वो अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा. टू नो दैट वी विल स्टडी अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट हैज़ टू पार्ट. वन इज नोन एज न्यूमन्स लॉ, वेयर इज सेकेंड इज नोन एज लेंज लॉ. In Newman's law, we know about magnitude of EMF induced, and in second law, we know about direction of current induced. Right? Then question is this: what is first law? We used to say when the magnetic flux through a circuit changes and induced EMF is set up in the circuit, whose magnitude is equal to negative rate of change of magnetic flux. हमने यह पढ़ा है कि अगर किसी सर्किट से, किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट वेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, what will be value of that very induced current, right? Then we used to say, according to first law, value of induced EMF is equal to negative rate of change of magnetic flux, right? It means that E will be equal to, let us suppose sorry, one misprint is here. We used to say EMF will be equal to, EMF induced will be equal to negative rate of change of magnetic flux. Magnetic flux is denoted by sign phi, right? And then change in magnetic flux, it means that due to motion magnetic flux will change. It means that it will be equal to phi 2 minus phi 1. And this very phi 2 minus phi 1 we have denoted by sign delta phi, right? And then rate means, let us suppose at time t1 flux was phi 1 and at time t2 flux is phi 2, so time gap will be equal to, change in flux will be equal to phi 2 minus phi 1 and time taken will be equal to t2 minus t1. तो हमने रिप्रेजेंट किया है phi 2 minus phi 1 as delta phi and t2 minus t1 by delta t, so EMF induced will be equal to delta phi by delta t. एक मिसप्रिंट यहाँ हो गया है, बाय छूट गया है. It means that we can say EMF will be equal to delta phi by delta t. Negative rate of, statement is negative rate of change of magnetic flux. It means that EMF will be equal to minus d phi by dt. It means that from here we can say magnitude of EMF induced will be equal to rate of change of magnetic flux, which is equal to delta phi by delta
T. And here negative shows that opposing nature of induced EMF. इसका क्या मतलब हुआ? Opposing nature of induced EMF. We will study this very fact in second law. And when time gap will be very small, then this very del gets converted into D, and we used to say EMF induced will be equal to minus d phi by dt. Right? It means that फर्स्ट लॉ मुझे यह बताता है, विच इज आल्सो नोन एज न्यूमैन्स लॉ. फर्स्ट लॉ मुझे यह बताता है EMF विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी. इट मीन दैट व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF? वी नो दैट वेरी थिंग इन फर्स्ट लॉ. एंड नाउ लेट अस सपोज देयर आर n कॉइल्स. एक कॉइल के जगह पर n टर्न्स हैं. लेट अस सपोज देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल. Then you tell me, when there will be motion of magnet toward the coil, then the magnetic flux, the magnetic field which is changing, magnetic flux which is changing, that will take place for each and every turn or not? It means that flux will change for each and every turn, and for each and every turn, or you can say in each and every turn there is induced EMF. Means induced EMF means you can say there will be production of a small cell. हर एक टर्न में स्मॉल सेल होगा समथिंग EMF का. Then what will be total EMF? Then we can say total EMF will be equal to sum of all EMF, or you can say total EMF will be equal to n times EMF produced in one, or total EMF will be equal to n times rate of change of magnetic flux in one turn. Or not? We can say or not? कैसे कह देंगे? तो जरा सा देखो तो अगर जो करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में, तो हर एक टर्न में सेम ही डायरेक्शन में ना फ्लो करेगा, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट मीन दैट जो सेल डेवलप होगा हर एक कॉइल में, EMF जो डेवलप होगा उसका करस्पॉन्डिंग जो इक्वेंस सेल डेवलप होगा उसकी पोलरिटी सेम होगी या नहीं होगी? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव. तो याद करो तो अगर सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं, सेल को कनेक्ट करते हैं, राइट, अगर हम लोग सेल को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, देन वी यूज टू से टोटल EMF विल बी इक्वल टू EMF ऑफ ऑल. और नॉट? Total EMF will be equal to EMF of all. That's why we used to say for n turns total EMF will be equal to n into minus d phi by dt, which is equal to minus delta into n phi by delta t. Right? नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग कैसे कहेंगे इंड्यूस्ड EMF हो रहा है. हाउ वी कैन सॉल्व दिस वेरी थिंग बाय द हेल्प ऑफ फिगर. सो फॉर दैट कम ओवर अ डायग्राम. सी दिस वेरी फिगर. हेयर यू हैव ए कॉइल. देखो कॉइल शो किया गया है लिख करके. हेयर यू हैव ए कॉइल एंड यू हैव ए मैग्नेट, एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज फेसिंग द कॉइल, राइट. देन when both will be in relative rest, दोनों relative rest में रहेंगे, then due to magnet few number of field lines will cross through the coil. करेगा या नहीं करेगा? करेगा. And now when magnet will move towards the coil, जब magnet तुम्हारे coil के तरफ move करेगा, then what will happen? Field lines will increase. Field lines will increase. It means that flux will increase, and as here flux has increased, it means that with passage of time here flux is changing. Then with what rate flux is changing, that should be equal to induced EMF, and due to this very induced EMF there will be flow of current in the circuit, flow of current in the coil, right. इट मीन दैट अगर इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें हम लोग कॉइल में, देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, राइट. नेक्स्ट कम ओवर व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल पुल आवर मैग्नेट. जब मैग्नेट पुल करेंगे, देन
again flux will change. Now in this very situation what will happen? फील्ड लाइंस विल डिक्रीज. जैसे जैसे मेरा मैग्नेट दूर भागता जाएगा फील्ड लाइंस जो कॉइल से पास करेगा दैट विल डिक्रीज. इट मीन दैट हेयर फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. इट मीन दैट विद पैसेज ऑफ टाइम फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. फर्स्ट केस में फ्लक्स मेरा इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था. सेकेंड केस में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है बट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग. मीन्स देयर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. पहले केस में फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स विल बी पॉजिटिव बट हेयर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स विल बी निगेटिव. इसका मतलब पहले केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अगर पॉजिटिव साइन के साथ होता है तो दूसरे केस में निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा. इट मीन दैट पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल गेट रिवर्स्ड. और जब पोलरिटी ईएमएफ का जो है पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो वैरी. इट मीन दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल वैरी, राइट. एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन वी यूज टू से on bringing the magnet towards coil flux increases. It means that there is induced EMF, so there will be induced EMF and induced current in the coil. But on pulling the magnet away from the coil, flux will decrease, flux decreases. It means that flux is changing here. So again there will be induced EMF, there will be induced current, but in opposite direction, right? Now come over, what will happen when relative motion will be faster? जब तेजी से मेरा कॉइल मैग्नेट की तरफ भागेगा देन व्हाट विल हैपन? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज करेगा नो डाउट फाइन. लेट अस सपोज मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल इज टेकिंग प्लेस विद फास्ट रेट. देन व्हाट विल हैपन? नो डाउट फील्ड लाइंस विल इंक्रीज बट इट मीन दैट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम change in field lines will increase, means change in flux will increase, and here change in flux has increased. It means that EMF induced will also increase or not. And when EMF induced will increase, so accordingly current will also increase. So we used to say faster relative motion, more rate of change of flux. Faster relative motion, more rate of change of flux. So there will be, according to formula, there will be more induced EMF, and when there will be more induced EMF, there will be more current. And when there will be more current, then there will be more deflection in the needle of the galvanometer. Or not? It means that relative motion अधिक होगा तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा. Now come over the case. Let us suppose both magnet and coil are in motion with same speed along the same direction. Then what will happen? जो शुरू में फील्ड लाइंस रहेगा अभी t1 टाइम में जितना फील्ड लाइंस है आफ्टर टाइम t2 अगेन फील्ड लाइंस विल बी सेम. सो चेंज इन फ्लक्स विल बी जीरो. नो डाउट टाइम हैज चेंज्ड. t1 से t2 हो गया है but change in field lines is zero, so change in flux will be zero. It means that there will be no change in flux. It means that rate of change of flux will be zero, and rate of change of flux is equal to EMF induced, so EMF induced will be zero, so current will be also zero. Let us suppose your circuit is open. जरा सा देखो तो मान लो कि सर्किट तुम्हारा क्लोज था, फील्ड लाइंस और मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल एंड मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल. सी दिस वेरी फिगर. लेट अस सपोज हियर योर सर्किट इज क्लोज्ड and with motion of magnet toward the coil, see figure number 8, your magnet is moving toward the coil, so flux will increase, field lines will increase, flux will increase. It means that there will be rate of change of flux, so there will be induced EMF as well as induced current, right? अब मैं थोड़ा सा सर्किट को नीचे से कट कर दे रहा हूँ, राइट, एंड फिर मैं मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ. देन नाउ व्हाट विल हैपन? With passage of time, field lines crossing through the coil will increase, so flux will increase or not. And when flux will increase, it means that with passage of time, flux is increasing. It means that there will be rate of change of flux or not.
So there will be induced EMF or not? There will be induced EMF. But question is this, will there any current in the circuit? Then we can say no, there will be no current in this circuit. Question is why? Because our circuit is open. मेरा भी नीचे कटा हुआ है, सर्किट मेरा ओपन है, so there will be no current. It means that यह जो चेंज इन फ्लक्स के चलते मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, दैट विल कॉज चेंज इन फ्लक्स, नॉट चेंज इन करंट. चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ इट मीन दैट यह जो है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज टेकिंग प्लेस दैट इज कॉजिंग प्रोडक्शन ऑफ और इंडक्शन ऑफ EMF, नॉट ऑफ करंट. करंट का इंडक्शन हो भी सकता है, व्हेन सर्किट विल बी क्लोज देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट, बट व्हेन इट विल बी ओपन देयर विल बी नो करंट, बट देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF. Right? That's why we used to say in case of open circuit, and in case of open circuit current does not flow. What does it mean? Means opposition is very very large. It means that resistance is infinite. That's why we used to say in case of open circuit having infinite resistance there will be EMF but there will be no current. So we can say change of flux induces EMF, not the current. Current is secondary thing. It may be produced, या प्रोड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट if change in flux is taking place there will be induced EMF. Now come over second law. Second law is known as Lenz law. Question is this, what is this very Lenz law? Then we used to say this very Lenz law gives us direction of induced current, gives us direction of induced EMF. Then question is this, what is the law? Then we used to say direction of induced EMF or induced current in the circuit is such as to oppose the cause that produces it. ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, अभी हमने कहा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट. बट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? देन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वी यूज्ड टू से जो करंट जो इंड्यूस होगा वह इस तरह से इंड्यूस होगा कि जिसके चलते वह प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करता है. जिसके चलते प्रोड्यूस हुआ है करंट जो प्रोड्यूस होगा कॉइल में इस तरह से प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि जिसके चलते वह प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करेगा. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी स्टेटमेंट? इट मीन दैट if production of current as well as EMF in the coil has taken place due to movement of magnet toward the coil, due to movement of north pole toward the coil, तो करंट का जो है डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जिसके चलते वह प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेट के मूवमेंट के चलते प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेट के मूवमेंट को अपोज करेगा. मीन्स जो मैग्नेट का मूवमेंट जो नॉर्थ पोल राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट कॉइल में इस तरीके से प्रोड्यूस होगा जो कि नॉर्थ पोल के मूवमेंट को अपोज करेगा. कहने का मतलब यह हुआ. दूसरा यू कैन से कि लिसन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल फील्ड इज इंक्रीजिंग, या फील्ड इंक्रीज करने के चलते जो है मेरा जो करंट का इंडक्शन हुआ है तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि अपने कॉज को अपोज करेगा. मीन्स इंक्रीज इन फील्ड को अपोज करेगा, फील्ड को इंक्रीज होने में अपोज करेगा. तुम्हारा आपका जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट जो इंड्यूस हुआ है दैट इज ड्यू टू, इन दिस वेरी स्पेशल केस दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन फील्ड लाइन्स. तो जो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा कि इंक्रीज इन फील्ड लाइन्स को अपोज करेगा. यहाँ पर आपका करंट जो प्रोड्यूस हुआ है दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स. तो जो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा सर्किट में, करंट इस तरीके से लूप में फ्लो करेगा कि इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा. क्वेश्चन इज हाउ.
Question is how. Let to know that. See second para. If current has produced due to movement of north pole towards the coil, then direction of produced current will oppose movement of magnet towards the coil. Right? Will oppose movement of magnet towards the coil. It means that magnet का जो movement होगा उसको अपोज करेगा. राइट तो वह कैसे अपोज करेगा. क्वेश्चन ये दिस कि मैग्नेट के मूवमेंट को कैसे अपोज करे. देन सी हेयर, अगर तुम्हारा लूप में यू आर सेइंग कि देयर विल बी प्रोडक्शन, देयर विल बी इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट इस तरीके से जब इसमें करंट का इंडक्शन हो जाएगा, इट इज ए कॉइल, सो देयर विल बी and it is a coil. It means that it will become current carrying coil, and it is well known fact to you all that current carrying coil behaves like a magnet, so it will become a magnet or not. अब ना यू टेल मी, अगर इसमें जो करंट का प्रोडक्शन इस तरह से हो कि जो है मैग्नेट की तरफ जो फेस है लूप का, अगर उधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए, यू आर सेइंग कि यह मैग्नेट बन जाएगा तो उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे ना. अगर इस कॉइल को जो है नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ डेवलप हो जाए, देन व्हाट विल हैपन. दिस वेरी कॉइल्ड वायर विल अपोज मोशन ऑफ मैग्नेट और नॉट. विल अपोज मोशन ऑफ मैग्नेट और नॉट. टेल मी. कम ओवर इन टर्म ऑफ फील्ड लाइन्स. अब जरा सा देखो तो यू आर सेइंग कि इसमें जो है ड्यू टू मोशन ऑफ मैग्नेट टू नॉर्थ पोल टुवर्ड द कॉइल करंट हैज प्रोड्यूस्ड. अब इसके और यह जो हुआ है उसके चलते फील्ड लाइन इंक्रीज किया, या यू कैन से फील्ड लाइन्स इंक्रीज किया है, उसके चलते करंट का इंडक्शन हुआ है. तो करंट का जो हम लोग कह देंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो हम लोग कह रहे हैं करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इंक्रीज इन फील्ड लाइन्स को अपोज करेगा. इंक्रीज इन फील्ड लाइन्स को अपोज करेगा मीन्स इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज करेगा. तो इंक्रीज इन फील्ड लाइन्स को कैसे अपोज करे, इसका मतलब जो फील्ड लाइन्स कॉइल से इंक्रीज कर रहा है उसको इंक्रीज ना होने दे. इसका मतलब फील्ड लाइन्स जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उस कॉइल की जो कॉइल वायर में जो करंट हो रहा है जो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, उसके चलते फील्ड लाइन अगर राइट टू लेफ्ट डेवलप हो जाए, तो अगर 5 से अगर फील्ड लाइन्स 5 से 10 हुआ था और इधर से 5 हो जाए तो 5 माइनस 5 को कैंसिल कर देगा. अगेन इट विल बिकम 5 और नॉट. देन नाउ यू टेल कि इस कॉइल में किस तरह से करंट फ्लो करे कि जिसके चलते फील्ड लाइंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाए. देन वी कैन से जो हम लोग की तरफ लूप का पार्ट है जो कि ज़्यादा ब्लैक है, उसमें जो है नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करे. देन फील्ड विल बी टुवार्ड द मैग्नेट, फील्ड लाइंस विल बी टुवार्ड द मैग्नेट. तो अगर फील्ड लाइंस मेरा मैग्नेट के मूवमेंट की तरफ बढ़ा है, अब फील्ड लाइंस ये जो मैग्नेट मेरा बन रहा है वो लेफ्ट की तरफ कर दे रहा है, तो इंक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज कर रहा है नहीं कर रहा है. और इंक्रीज इन फील्ड लाइंस को अपोज कर रहा है, इट मीन दैट इंक्रीज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है. टेल मी. इट मीन दैट वी यूज टू से लेंज लॉ सेज दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल takes place in such a manner that it always opposes the cause due to which it has produced or it is produced. जिसके चलते प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है. इसको समझिए, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है. उसी के चलते प्रोड्यूस हो रहा है और उसी को अपोज कर रहे हैं. राइट. क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा क्यों होता है. क्वेश्चन इज दिस कि ऐसा क्यों होता है. Right. See here what I have written. North pole will be developed on the end of the coil facing north pole, so there will be repulsion between the coil and the magnet. Question is this कि ऐसा क्यों होता है. It mean that अगर ऐसा होगा तो नॉर्थ पोल मेरा राइट डायरेक्शन में, मैग्नेट जो है राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. इट मीन दैट when developed north pole of the coil will oppose north pole of the magnet, then north pole of the magnet means magnet will not to move towards right. For movement of magnet there is need to apply force, and for that there will be work done. It means that to move magnet toward the coil there is need of work, there will be work done or not. वर्क डन होगा. इट मीन दैट वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन ओवर मैग्नेट टू मूव इट
मूव इट विच मूव कर जो है मूव कराने के लिए वर्क का जरूरत पड़ेगा, राइट। वर्क जो है मूव कराने के लिए मुझे वर्क का जरूरत पड़ेगा। इट मीन दैट देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज नीड ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन भी यहाँ पर उठता है, एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जो है देन क्वेश्चन इज दिस कि अगर हमने वर्क किया तो वो कहाँ इन वर्क मेरा जो मैंने वर्क किया मीन्स एनर्जी दिया वो कहाँ गया एनर्जी। देन वी यूज टू से वह एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कॉइल में एपियर हो रहा है। इट मीन दैट इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन दैट वी कैन से लेंज लॉ वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मोशन को अपोज नहीं करता, मोशन को सपोर्ट करता, इसका मतलब मेरा मैग्नेट मूव करते जाता और जब मैग्नेट मूव करते जाता तो करंट का प्रोडक्शन होता जाता। इट मीन दैट विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, विदाउट डूइंग एनी वर्क, अगर मेरा मैग्नेट मूव करता और करंट मुझे मिलते जाता, इट मीन दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी, विदाउट कंजप्शन ऑफ एनी वर्क, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is not according to law of conservation of energy। तब ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है, और नॉट वी आर गेटिंग एनर्जी। क्वेश्चन इज दिस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कांट क्रिएट एनर्जी, वी कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी। बट अगर ऐसा नहीं होता, वर्क करने की जरूरत नहीं होती तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर एट द विदाउट कॉस्ट ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी, विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। तब तो इससे अच्छा कोई नहीं होता। फिर मीन्स विदाउट कंजप्शन एनी एनर्जी वी आर गेटिंग एनर्जी। इट मीन दैट वी कैन से इट डज नॉट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन दैट Lenz law is quite right. It means that direction of induced EMF in the circuit will be in such a manner that it will always oppose the cause due to which it has produced or it produces। जिसके चलते यह प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस करता है, और इट इज प्रोड्यूस्ड जिसके चलते यह प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है, राइट। ओके।